हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सी BKD, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट टॉपर्स 20 दिल्ली, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके लिए आप लोगों को ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद। आई होप सो कि आप पिछला लेक्चर एंजॉय करा है, आपने बहुत कुछ सीखा है। आज का मेरा टॉपिक है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेटे, simply at first we define it. Compounds having same molecular formula but different functional group are called functional isomers, and the phenomena is called functional isomerism. That's very simple definition, जिसके थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे? Compounds having same molecular formula but different functional group. Different functional group. बेटा आगे हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम FG यहाँ पर एब्रिविएट कर देते हैं। आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स and the phenomena is called functional isomerism. Functional isomerism. राइट बेटा, अब इसको हम बेहतर वे में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया बेटा C2H6O, राइट बेटा, C2H6O, यानी here is 3 component atoms, carbon, hydrogen and oxygen. Here carbon is 2, hydrogen is 6 and oxygen is 1, right? अब in this case, according to this general formula for that, it is CnH2n plus 2O. Here where n is number of carbon atoms, अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर n क्या है? 2, 3, 4 and so. So फर्स्ट मेंबर ये देख रहे हैं, ये C2H6O। अब अगर इसको हम लिखें तो दिस इज H3CCH2OS and H3COCH3, H3COCH3, राइट बेटा।
यहाँ पर देखिए बोथ द कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, right? C2H6O. Molecular formula, it tells about the number of component atoms in an organic molecules. That is called as molecular formula, nothing else. यहाँ पर देख बेटा C2H6O ये कुछ भी नहीं बताता है, ये अल्कोहल है, ईथर है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, आई बात समझ में? बट नंबर ऑफ कंपोनेंट एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय this formula and that is called molecular formula. It tells about the number of component atoms. अब देखिए now there is two compounds possible from this molecular formula. Is it clear? तो one is alcohol and another one is ether. Here देखिए OH in first compound hydroxyl group as functional group. This represents alcohol and next compound has oxygen as functional group. That is called ethereal oxygen. This is ether, right beta? So both the compounds are only differentiate due to different functional group. Here hydroxyl group as functional group and here ethereal oxygen as functional group. But number of component atoms, that means देख रहे हैं, number of carbon atom is 2, number of hydrogen atom is 6 and number of oxygen atom is 1. Clear है बेटा? So you can say that alcohols and ethers are functional isomers to each other, right बेटा? अब you can also say that this general formula represents alcohol and ether, यानी for alcohol and ether, right बेटा? alcohol and ether. अब आप लोग बता सकते हैं ऐसे कितने पेयर हैं, एक पेयर की डिस्कशन मैंने कर दी, ऐसे कितने पेयर हैं जो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स शो करते हैं? हाउ मेनी पेयर्स लाइक दैट विच एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर? ऐसे कितने पेयर हैं? देखिए एक की मैंने डिस्कशन कर दी, आई होप सो। हाँ रीता समझ में आ गया बेटा? संयोगता आपको मिस्टर रमन समझ में आया? नहीं क्यों बेटा? दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों कंपाउंड जो मैंने लिखा है, these are derived from this molecular formula, right? And here number of carbon, hydrogen and oxygen atoms are same, right? Or number of carbon, hydrogen and oxygen atoms are same. देख रहे हैं? But both the compounds are only differentiate due to different functional group or according to definition. देख रहे हैं डिफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, क्या समझाया आपको? Compounds having same molecular formula but having different functional group are called functional isomers and phenomena is called functional isomerism. So you can say that alcohols and ethers are functional isomers to each other, right बेटा? अल्कोहल और ईथर क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। क्लियर है? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कंपोनेंट एटम सेम है बट दोनों में क्या है? फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप क्रियात्मक समूह कहते हैं, दे आर डिफरेंट। क्लियर है बेटा? अब आइए देखिए फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, राइट बेटा? आइए हम लिखते हैं following pair of compounds which show functional isomers बेटा फर्स्ट पेयर मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज अल्कोहल एंड ईथर।
सेकेंड वन इज थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर। बेटा थायो अल्कोहल ऑलरेडी मैं नॉमेनक्लेचर में आपको समझा चुका हूं क्या होता है थायो अल्कोहल। बेटे O is replaced by sulfur, जैसे OH है, if oxygen of hydroxyl group is replaced by sulfur that is called thio group। और अगर OH है SH आ गया तो that is thio alcohol। अगर ईथर का O हट के S आ गया तो that is called thio ether। simply right बेटा, any oxygen is replaced by sulfur that is called thio। आइए थर्ड वन इज aldehyde, ketone, unsaturated। और बेटा unsaturated मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बट यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड खोलेंगे unsaturated, इसलिए हम बेटे ब्रैकेट में लिख दें डबल बॉन्ड unsaturated अल्कोहल, unsaturated ether, unsaturated ether। बेटे unsaturated भी डबल बॉन्ड, साइक्लिक अल्कोहल, cyclic alcohol and cyclic ether। राइट बेटा, ये तमाम पेयर्स फंक्शनल आइसोमर्स शो करते हैं। राइट बेटा, राइट बेटा। फोर्थ वन इज थायोअल्डिहाइड, थायोकीटोन, unsaturated, thiol, unsaturated, thioether, cyclic, थायोअल्कोहल, साइक्लिक थायोईथर। क्लियर है बेटा। फिफ्थ वन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये जनरली आपके बुक में होते हैं बेटा। अनसैचुरेटेड डायॉल, और यहां भी बेटा अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोक्सी, कार्बोनाइल कंपाउंड, राइट बेटा, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आ जाइए
नेक्स्ट वन डाइइन एंड आइन. Seventh one is alkyl aryl alcohol. बेटे अल्काइल एराइल ईथर. एंड फिनॉल. Beta, if OH is directly linked to benzene nucleus, that is not alcohol, that is phenol. Clear है? निशिकांत, वर्षा, clear है बेटा? प्रेरणा, get it or not बेटे? Get it? 16 राघव, सुन पा रहे हैं बेटा? समझ रहे हैं? मुस्कान, वैभवी, वैष्णवी, get it or not? Now बेटे 8th one, cyanide and isocyanide. Ninth one is nitro and nitrite compounds. Ten one, oxime. This is also called isonitroso. बेटे नाइट्रोसो एंड अमाइड. इनेमाइन, इनएमाइन, एंड इमाइन. बेटे all the three type of amines. And 13 one is all the three type of amines. राइट बेटा? अब देखिए आप, टोटल 13 पेयर्स मैंने लिखा है. अल्कोहल और ईथर को बेटा ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है. क्लियर है? अब जैसे देखिए नेक्स्ट वन, आपको एक और मैं समझा देता हूँ. जैसे देखिए थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर, आपको क्लियरली मैंने समझाया बेटा. इफ ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, दैट ग्रुप इज कॉल्ड थायो ग्रुप. यहाँ पर देख बेटा, अगर मैं लिखूं C2 H6S, बेटे इसके लिए कंपाउंड क्या होगा? H3C CH2 SH एंड H3C SCH3. राइट बेटा? यहां पर देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट एटम्स आर सेम. ये बेटा सेकेंड वन. और यहां पर क्या है? सल्फर ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप. Right, so both the compounds are only differentiate due to different functional group. In first compound SH as functional group, this represents thioalcohol, that is also called mercapto or sulfohydrate. Right बेटा? And now this is dimethyl thioether. यही कंपाउंड है बेटा जो आपके LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपकी कुकिंग गैस है, उसके साथ मिक्सअप करके सिलेंडर में भरी जाती है. क्योंकि बेटा आपका कुकिंग गैस जो है वो क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है. तो इसी की लीकेज की वजह से
जब आपका कुकिंग गैस लीक होता है तो ये उसके साथ लीकेज होता है, और इसके स्मेल से आपको पता चलता है कि आपका कुकिंग गैस सिलेंडर से लीक कर रहा है, यानी दिस वन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ एलपीजी फ्रॉम सिलेंडर। क्लियर है बेटा? इट इज मिक्सअप विथ एलपीजी इन सिलेंडर। क्लियर है? कोई डाउट? ये एक बार यहां से सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। अब आइए, अल्डिहाइड कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, राइट बेटा? अगर आइए यहां से मैं क्वेश्चन करूं तो थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, मैं बेटा इसको क्लीन करता हूं ऊपर। देख बेटा, अनसैचुरेटेड, उससे पहले अल्डिहाइड कीटोन। बेटा कीटोन के लिए हमारा फर्स्ट मेंबर होता है दिस वन, सी और ये सी, राइट? यानी अगर हम जनरल फॉर्मूला ले लें बेटा, C3H6O, ये देख रहे हैं H3C COCH3, इसी को बेटे अंडर बॉन्ड लाइन नोटेशन आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए, मैं लिखा H3CCHO, उसके बाद बेटा ये हमने लिख ही रखा है ऑलरेडी। अब आइए अनसैचुरेटेड अल्कोहल, और अनसैचुरेटेड में हमें क्या लेना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड। मैंने क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। यहां पर देख बेटा, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर डिफरेंट, सॉरी आर सेम, बट बेटा दोनों कंपाउंड में आप देखिए, तीनों कंपाउंड में यहाँ बेटा अल्डिहाइडिक ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप, यहाँ बेटा कीटोनिक ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप, राइट? नाउ नेक्स्ट कंपाउंड H2C CHOCH3, देख रहे हैं, मिथाइल विनाइल ईथर। बेटा यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन एज फंक्शनल ग्रुप। सो यू कैन से दैट ऑल दीज 4 कंपाउंड्स are differentiate due to different functional group, right? But number of component atoms are same in all these compounds. अब आइए, इससे आगे है आपका साइक्लिक अल्कोहल। बेटे ये भी आपके साथ हम नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर चुके हैं। साइक्लिक अल्कोहल, यहां भी देखिए नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर सेम। उसके बाद बेटे साइक्लिक ईथर, जिसको आप ऑक्सीटेन भी बोलते हैं, राइट? और ये साइक्लोप्रोपेनॉल और साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल, राइट बेटा? देखिए इन ऑल दैट कंपाउंड्स ओनली डिफरेंस इज फंक्शनल ग्रुप। बेटा सब में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, सब में डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो यू कैन से दैट ऑल दीज आर एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को समझने में हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है? हमें बताने में आपको खुशी होगी, और आप जितना बेटा कॉन्सेप्ट जिसका जितना ज्यादा क्लियर हो वो उतना ज्यादा क्वेश्चन करेगा, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बेटा क्वेश्चन की भूख होनी चाहिए, क्वेश्चन चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, कहीं का भी हो, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि यूट्यूब खोल लिए और हम लंबी चौड़ी लेक्चर सुन रहे हैं, हमारी एडवर्टीजमेंट सुन रहे हैं, वो मत सुनिए। कंटेंट, सब्जेक्ट के कंटेंट को देखिए और नॉलेज गेन करिए, फालतू की बातें मत सुना करिए, राइट? अब आइए, नेक्स्ट है आपका थायोअल्डिहाइड, थायोकीटेन, अनसैचुरेटेड थायोअल्कोहल, अनसैचुरेटेड थायोईथर, साइक्लिक थायोअल्कोहल एंड साइक्लिक थायोईथर। बेटा मैंने क्लियर आपको बोला है, एक ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। आइए मैं यहां पर सीधा लिख दूं, हियर देख रहे हैं, यहां पर मैंने लिख दिया सल्फर। अब देखिए अगर इसको मैं ऑक्सीजन हटा के सल्फर कर दिया, ये क्या हो गया बेटा? थायोकीटोन। यहां बेटा अगर हम ये कर दें, ये क्या हो जाएगा? थायोअल्डिहाइड। यहां देखिए OH की जगह बेटा अगर मैंने सल्फर कर दिया तो दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड थायोअल्कोहल। यहाँ बेटा ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, दैट इज मिथाइल विनाइल थायोईथर। यहाँ देखिए साइक्लोप्रोपेन थायोल, और ये बेटा आपको याद होगा ताया ताई करके मैंने समझाया था,
दिस इज थाया, 1 थाया साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है बेटा? सो जो रेस्ट बचा है, आई होप सो कि आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए। कहीं भी आपको दिक्कत लगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो भी कंपाउंड्स आप बनाएंगे उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट एटम सेम होंगे बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, तभी बेटा वो कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर्स होगा। ये नहीं कि किसी में 3 कार्बन हो गए, किसी में 4 कर दिया, किसी में 5 कर दिया और फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस कर दिया और आपको लगेगा दैट इज फंक्शनल आइसोमर्स। बेटे दैट्स रॉन्ग। सिंपली आपको याद रखना है नंबर ऑफ कंपोनेंट एटम्स आर सेम बट डिफरेंशिएट ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आई होगी और आपने एंजॉय करा होगा। बाय बेटे, गुड डे एंड विशिंग यू गुड लक।